Dear students, today we are going to start indefinite integration, miscellaneous exercise 3. Continue question number 1, multiple choice questions. Choose the correct options from given alternatives. Now see question number 6 today. Integral of x minus sin x upon 1 minus cos x into dx. Your options are A, x into cot x by 2 plus c, option B, minus x into cot x by 2 plus c, and option C, cot x by 2 plus c, and last one, option D, x tan x by 2 plus c. So which option is correct out of these options? Now you have to simplify this integration and choose your correct option out of A, B, C, and D. See the solution. How will you simplify this integration? Let I equal to integral of x minus sin x upon 1 minus cos x into dx. So x minus sin x upon 1 minus cos x is the ratio of two linear polynomials. So you can separate it easily. X upon 1 minus cos x and minus sin x upon 1 minus cos x. That is in terms of two integrals. So I equal to integral x upon 1 minus cos x into dx minus इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब क्या करना है, स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि अब सेपरेट करने के बाद हमें क्वेश्चन आ जाएगा। तो आने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर पर फोकस करो कि डिनोमिनेटर को एक ऐसा फॉर्मूला देना है जिससे 1 माइनस कॉस एक्स कन्वर्ट होकर एक सिंगल टर्म में आ जाए। तो इसका एक सिंगल टर्म में फॉर्मूला क्या है, 1 minus cos x equal to 2 sin square x upon 2. This is half angle formula for 1 minus cos x. So both have same denominator. So this will be also 2 sin square x by 2. So I equal to integral x upon 2 sin square x upon 2 into dx minus, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर अलजेब्रिक था, x है तो एज इट इज रखना है, और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, साइन x। तो साइन x को भी देखो, अगर हाफ एंगल में इसका कोई फार्मूला है तो अप्लाई कर देते हैं। यस इट हैज। So 2 sin x by 2 into cos x by 2. Sin x equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2 upon 2 sin square x upon 2 into dx. Now you have to simplify. अब देखो यहाँ पर है x upon 2 sin square x upon 2. So taking 1 upon 2 out of integral because of constant into integral of x into cosec square x upon 2 into dx, because 1 upon sin square x upon 2 is cosec square x upon 2, you know very well. And here 2 going by 2, sin x by 2, one time cancelled from the denominator. So cos x by 2 upon sin x by 2 becomes cot x upon 2 into dx. Now for the first integral, means इसके लिए x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और चाहे तो हाफ को भी साथ में ले ही लेते हैं कि हाफ इंटू एक्स इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स के लिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखो यहाँ पर मैंने इसके लिए हिंट दे दिया है एरो करके कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सो यूजिंग u इंटू वी फार्मूला हियर। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, जस्ट repeat once again the formula. If you don't have any formula, you should refer my formula list in the previous videos. So equal to half x means it is u को क्या लेते हैं, half into x, u into integral of v dx, that is cosec square x upon 2 into dx minus integral d upon dx of u होता है, तो u हमने क्या लिया है यहाँ पर, half x into integral cosec square x upon 2 dx ब्रैकेट क्लोज्ड होल dx माइनस ये जो cot x अपॉन 2 dx है उसको एज इट इज यहाँ पर रखते हैं, माइनस cot x अपॉन 2 इंटू dx. Therefore I equal to half into x, this one as it is, integral of cosec square x upon 2 into dx is minus cot x upon 2 upon half. हाफ क्यों, कोफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, हाफ, वो हाफ यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ हाफ x इज हाफ ओनली,
into integral of cosec square x upon 2 dx minus cot x upon 2 upon half into dx minus integral cot x upon 2 into dx. Therefore I equal to, अब यहाँ पर देखो हाफ हाफ गेट कैंसल्ड, x into minus cot x upon 2 minus x into cot x by 2, and here minus into minus plus, here half and half cancelled, तो इंटीग्रल cot x यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल cot x upon 2 into dx minus integral cot x upon 2 into dx. So they are opposite in sign and equal quantities, that is plus integral cot x upon 2 dx and minus integral cot x upon 2 dx are cancelled to each other. Therefore, I equal to minus x into cot x upon 2 plus c. Now, you should check your options. So, therefore, option B, minus x into cot x upon 2 plus c is the correct. Okay. So, your question number 6 completed now. Now, see question number 7. If fx equal to sin inverse upon under root 1 minus x square and gx equal to e raised to sin inverse x, then integral of fx into gx dx is how much? To find the value of integral fx into gx into dx, your options are A, e raised to sin inverse x into sin inverse x minus 1 plus c. Option B, e raised to sin inverse x into 1 minus sin inverse x plus c. And option C, e raised to sin inverse x into sin inverse x plus 1 plus c. Option D, e raised to sin inverse x into e raised to sin inverse x minus 1 plus c. तो हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ e raised to sin inverse x is common in all the options. तो sin inverse x minus 1 plus n या 1 minus 1 plus जो भी यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज करके दिया है. ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना चाहिए कि जिससे थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो दूसरे ऑप्शन पर पहुंच जाओगे. तो रॉन्ग ऑप्शन एंट्री नहीं होनी चाहिए, ओनली करेक्ट ऑप्शन पर जाना है. नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स सोल्यूशन. I equal to integral fx into gx into dx. ये पार्ट को लिया, integral of fx into gx into dx. So what is the value of fx? The value of fx is, देखो fx equal to sin inverse x upon under root 1 minus x square from this part given, and value of gx e raised to sin inverse x, substitute here e raised to sin inverse x into dx. So we see that sin inverse x twice in the numerator, तो पुट sin इनवर्स x इक्वल टू t, क्योंकि देखो इसी का जो डेरिवेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो पुट sin इनवर्स x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स dt. और अगर कहीं वैल्यू ऑफ x भी रखना है तो भी नोट कर लो, x इक्वल टू साइन t. तो आवर इंटीग्रल बिकम्स, देखो अब यहाँ पर क्या है, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स dt. ये तो हो गया dt इतना, तो ये dt लिख लिया और रिमेनिंग पार्ट यहाँ t हो गया और यहाँ e रेज टू टी. तो i इक्वल टू इंटीग्रल t इंटू ई रेज टू टी इंटू डी टी. तो t इंटू ई रेज टू टी एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये सबको पता है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मीन्स अगेन इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स फार्मूला. Therefore, I equal to t into integral of e raised to t dt minus integral bracket d by dt of t into integral e raised to t dt whole dt. Now integrating is, so I equal to t into e raised to t minus integral e raised to t into dt. क्योंकि देखो इंटीग्रल ऑफ e raised to t एज इट इज नो चेंज, तो यहाँ पर d by dt of t क्या हो गया 1 और 1 into e raised to t इस इंटीग्रल ऑफ e raised to t dt e raised to t ओनली. तो इसके लिए यहाँ पर सेम टर्म्स आ जाएगा. तो i इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू टी माइनस इंटीग्रल ई रेज टू टी डी टी. तो अगेन इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी डी टी विल बी सेम. तो देयर फोर आई इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी. तो ई रेज टू टी कॉमन कर लेते हैं पहले. तो i इक्वल टू ई रेज टू टी इंटू टी माइनस वन प्लस सी. Substituting the value of t, so this will be e raised to sin inverse x into sin inverse x minus 1 plus c.
तो इस तरह से ये अपना ऑप्शन ए मैच करता है। तो ऑप्शन ए e रेज टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। इफ इंटीग्रल ऑफ tan cube x into sec cube x dx equals 1 upon m into sec raised to mx minus 1 upon n into sec raised to nx plus c, then m comma n equals what? मीन्स एम एन के वैल्यूज फाइंड करने हैं। और ये ध्यान देना है यहाँ पर कि एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ऐसा नहीं कि एन एम या एम एन चलेगा। एम एन फर्स्ट वैल्यू विल बी एम, सेकंड वैल्यू विल बी एन, ये ऑर्डर में ही होना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर तो करेक्ट मिला लेकिन चलो 5335 जो भी आ गया हो, इट्स ओके। नो, इट्स रॉन्ग। एम एन दैट इज एम एन रिस्पेक्टिवली, ये ध्यान देना है। क्रम से होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। तो ऑप्शन ए 5,3, ऑप्शन बी 3,5, ऑप्शन सी 1/5, 1/3 एंड डी 4/4। तो 4/4 तो पॉसिबल नहीं है, बाकी ऑप्शंस के लिए चेक करो। और 4/4 ऐसा दिया है कि यहाँ पर क्यूब क्यूब है तो कोई इसको 4/4 भी लिख सकता है, इसके लिए उन्होंने जल्दी से 4/4 भी रखा है। तो चलो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन। आई इक्वल टू इंटीग्रल tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को आउट करो। क्या करना है? सेक स्क्वायर एक्स। तो चलो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को आउट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा? एक सेक एक्स रिमेनिंग रह जाएगा। और जो tan क्यूब एक्स है उसमें से भी tan स्क्वायर एक्स बाहर लेते हैं तो एक tan एक्स यहाँ से आ जाएगा। तो होल इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा? tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहाँ से एक tan x और एक sec x अलग कर दिया, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो tan स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, बिकॉज यू नो वेरी वेल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हो तो फिर से बताना, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। I इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब चलो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। किसी स्टूडेंट को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो चलो जिसको मालूम है सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट सेक एक्स इक्वल टू टी। क्यों सेक एक्स को ही टी लिया गया? हमने, हमारे पास तो देखो tan एक्स भी था, सेक एक्स को ही क्यों लिया? क्योंकि अगर हम tan एक्स को लेते तो डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आ जाएगा, लेकिन ये सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन विल नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, विल नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको हम टी के फॉर्म में एलिमिनेट नहीं कर सकते tan एक्स को टी लेने के बाद। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन भी मैं ही पूछ लेता हूँ, नहीं पूछ रहे हो तो sec x, put sec x equal to t. Okay, now differentiating with respect to x on both sides. What is derivative of sec x? Yes, sec x into tan x. तो sec x into tan x into dx equal to dt, ये मिल गया। तो यहाँ पर देखो sec x into tan x into dx, ये क्या हो गया कन्वर्ट होकर के dt। और जो sec x जहाँ पर भी है वहाँ हम क्या लिखेंगे? t। तो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस वन, देखो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वन इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स है तो हो गया टी स्क्वायर, और ये दोनों मिला करके देखो सेक एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया अपना? dt। तो इंटू डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक टी स्क्वायर माइनस वन, मतलब जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन है वो क्या हो गया? टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू फोर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। Now integrate each separately. So I equal to integral t raised to 4 dt minus integral t square dt. You know very well integral of t raised to 4 dt, t raised to 5 upon 5 minus integral of t square dt, t cube upon 3 plus c. Now substitute the values of t. Sorry, value of t 1 upon 5 sec raised to 5x minus 1 upon 3 sec cube x plus c. तो देखो अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर फास्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। देखो यहाँ से है टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई तो ओरली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। टी रेज टू फोर एंड टी स्क्वायर मिला तो इंटीग्रेट करने के बाद पावर क्या होगी? वन वन से प्लस हो जाएगी और सेम नंबर विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो अपॉन फाइव और अपॉन थ्री आने वाले हैं डिनोमिनेटर में।
तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमारे एम एन के वैल्यूज क्या आने वाले हैं। देखो t⁵ और टी क्यूब अपॉन सेम नंबर्स, तो यहाँ से गेस कर सकते हो कि m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 3। कंपेयर कर लो जो यहाँ पर टर्म हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1/m sec रेज टू 5x, अब यहाँ क्या है 1/5 sec रेज टू 5 और यहाँ 1/m sec रेज टू mx, 1/3 sec क्यूब x, 1/n sec nx प्लस c। तो इस तरह से कंपेयरिंग दीज टू वी गेट वैल्यूज ऑफ m and n, m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 3। देयरफॉर ऑप्शन ए 5,3 इज करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से अगर हमें इसको फास्ट करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे प्रैक्टिस के ऊपर, और हम इसको 2 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको इमीडिएटली ये टर्म को चेंज कर लेना, और हमारे पास देखो पुट करते हैं कि हमें sec x को t लेने के बाद sec x tan x क्या हो जाएगा, ये dt में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर t⁴ दैट इज t⁵/5 हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आता है, तो m इज 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, तो उसका t³ 3, तो n इक्वल टू 3 हो रहा है, m इक्वल टू 5, तो m5 n3 यू कैन गेस योर ऑप्शन क्विकली विद इन 10 seconds यू कैन गेस योर ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। I इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos x माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स ऑप्शन ए log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस tan x/2 प्लस सी। ऑप्शन बी देखो sin 2x माइनस cos x प्लस सी। ऑप्शन सी log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस cot x/2 प्लस सी। एंड ऑप्शन डी cos 2x माइनस sin x प्लस सी। तो ऐसा है कि अगर ये किसी न किसी के तो इंटीग्रल होंगे ही, लेकिन हमारे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कौन सा है वो देखना है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। I इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos x माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सो cos x माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, जैसे अभी सम स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो cos x को कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस cos x आएगा और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम फिर से सेम बनी रहेगी, उसमें भी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मतलब इजीली सोल्यूशन नहीं बनता, तो क्या करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर cos x माइनस cos स्क्वायर है और ये प्लस cos x है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे cos x को कॉमन करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos x, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग cos x in the numerator, see this step। so I equal to integral 1 minus cos x plus cos x upon cos x minus cos square x into dx। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग cos x इन द न्यूमरेटर, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है फिर ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉमन करेंगे तो 1 माइनस cos x आने वाला है इसके लिए। नाउ सेपरेट इट 1 माइनस cos x अपॉन cos x into 1 minus cos x, taking cos x common from the denominator, here cos x common into 1 minus cos x into dx, plus second term को cos x लेते हैं, cos x upon cos x into 1 minus cos x into dx। now see this 1 minus cos x 1 minus cos x get cancelled, and here cos x get cancelled। तो I इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1 अपॉन cos, तो दिस इज sec x dx, प्लस यहाँ पर होता है 1/1 माइनस कॉस एक्स, और अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 माइनस कॉस एक्स आया था, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, राइट, डिनोमिनेटर में। तो ये 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो इट इज देखो 1/1 माइनस कॉस एक्स इज हाफ इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है डिनोमिनेटर में, तो हाफ बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है तो इतना थोड़ा बाहर रखोगे तो अच्छा है कि 1/1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, तो ये फार्मूला है, हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज 1 माइनस कॉस एक्स, 1/1 माइनस कॉस एक्स। नाउ integrate each separately। इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x, वैसे log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x भी लिख सकते हो, माइनस हाफ इंटू माइनस cot x अपॉन 2 अपॉन हाफ, तो हाफ हाफ गेट कैंसल्ड, और यू कैन से इंटीग्रल ऑफ हाफ कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 इज
माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, डायरेक्टली बाहर रख सकते हो। सो वी गेट, इस तरह से हमें ऑप्शन सी मैच करता हुआ दिख रहा है। देयरफॉर ऑप्शन सी लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिला। नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि एवरी डे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करो उतना ही अच्छा है। और एवरीडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि अब देखो जेईई एंड सीईटी एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है। तो जेई और सीईटी के एग्जाम्स जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। और ये सभी क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ cot x upon sin x into cos x into dx. Your options are A 2 root of cot x plus c, option B minus 2 root cot x plus c, and option C half root cot x plus c, option D root of cot x plus c. तो चलो देखते हैं which option is correct for question number 10. Now start your solution here. I equal to integral root of cot x upon sin x into cos x into dx. So I equal to, अब यहाँ देखो रूट कॉट एक्स अपॉन साइन इंटू कॉस, तो हमें क्या करना चाहिए? हम ये करते हैं कि डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब ये न्यूमरेटर में लिखोगे रूट कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो अपॉन वन अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। तो न्यूमरेटर विल बी रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो वन टाइम साइन एक्स गेट कैंसल्ड एंड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बिकम्स कॉट एक्स। क्लियर यहाँ तक? तो कि डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये स्टेप मिल गया हमें कि इंटीग्रल रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो रूट कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स, तो वन टाइम कैंसिल हो गया रूट से, जैसे रूट टू अपॉन टू बिकम्स वन बाई रूट टू, रूट एक्स अपॉन एक्स बिकम्स वन अपॉन रूट एक्स। ऐसे यहाँ पर देखो रूट कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स बिकम्स वन अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स, that is integral cosec square x upon root cot x into dx. Put cot x equal to t, because you know very well derivative of cot x is minus cosec square x into dx equal to dt. So cot x is t, therefore minus cosec square x into dx is dt. Therefore I equal to माइनस, ये माइनस साइन को इंटीग्रल से बाहर रख देते हैं, तो I equal to माइनस इंटीग्रल वन बाई रूट टी इंटू डी टी, एंड वन बाई रूट टी टू रूट टी, इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट टी टू रूट टी, तो I equal to माइनस टू रूट टी प्लस सी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I equal to माइनस टू इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो उसमें से हमें ऑप्शन बी माइनस टू रूट कॉट ऑफ एक्स प्लस सी करेक्ट मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।